Now let us begin today's class. See, in the last class, like I gave you ample time to solve and clear all your doubts. So मैंने question number 1 तो सारा solve करा दिया. Now tell me everyone, question number 1 के बाद मैंने इस बैच में कोई homework दिया मैंने? Yes. So everyone note down. So basically in question number 2, you all have logarithmic type and exponential type. Okay, you have got basically two types, that is logarithmic type and exponential type. So let me start with these two types first properly. Now let us see the formula which we are going to apply right now. See, we know that ddx of log x with base e, please make sure कि log का differentiation तभी possible है अगर उसका base e होगा. If the base of logarithm is not e, we cannot differentiate. Number one. Repeat. If the base of log is not e, we cannot differentiate that logarithm. So what is ddx of log x? We find that ddx of log x is 1 by x. Okay. So ddx of log x with base e is equal to how much? 1 by x. अब हम लोग देखते हैं sums इसके ऊपर. जैसे मान लो for example we have log of, let's say log of log sin x. ठीक है, क्या है log of log sin x? तो ध्यान से एक बार नोट करना. तो यहां पे मैं लिखूंगा differentiating y with respect to x. So we are differentiating y with respect to which variable? Variable x. So we have ddx of y on the left, and y is a logarithmic function. Y is a logarithmic function. तो सबसे पहला पॉइंट देखना एक बार ध्यान से. सबसे पहला पॉइंट, एक बात बताओ, ddx of y तो dy by dx हो जाता है. चलो ठीक है, ddx of y is equal to dy by dx. That is all okay. Now what I am saying is, अगर मान लो ddx of y dy by dx होता है, if ddx of y is dy by dx, now सबसे पहला चीज यहाँ पे log फंक्शन है. So we find that ddx of y is dy by dx. अब ध्यान से एक बार नोट करना, ये log फंक्शन है, नोट करो, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और log का बेस अगर कुछ मेंशन नहीं है मतलब क्या है, e है. और एक बात बताना, यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो एक बार अनम्यूट करके अपने आप को बताओ तो. log x होता है ना, बट x के जगह पे क्या है बता सकते हो यहाँ पे? What is there at the place of x? x के जगह पे क्या है यहाँ पे बताओ तो एक बार. Yes, x के जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, log sin x. log sin x. log of sin x. We find that x के जगह पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में log का फॉर्मूला log x का 1 by x होता है. मतलब log का जो x है वो पूरा 1 by x हो जाता है. फॉर्मूला यही है, ठीक है. बट एक बात बताओ, ये जो x का जगह जो हम देख रहे हैं, x के जगह पे क्या है? log of sin x है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करने वाले हैं. ठीक है, पहले हम लोग ये पूरा पार्ट को x अज्यूम करने वाले हैं and we will apply the formula of ddx of log x. So ddx of log x is 1 by x. उसके बाद हम लोग ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है उस पार्ट का हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. तो हम लोग ने log of sin x को x अज्यूम किया है, log of sin x को x अज्यूम किया है. अब बताना तुम लोग यहाँ पे इस पार्ट में ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, इस पार्ट में ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और यहां पे हम देख रहे हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और log का जो जैसे x है, जैसे log x हो गया 1 by x. अब बताओ यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो एक बार? sin x. sin x. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर देंगे. तो log x with base e,
log x with base e is how much 1 by x means 1 by sin x और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन। अब देखो ये भी x है ये भी x है तो यहाँ पे हम लोग को अज्यूम करने का कोई जरूरत नहीं है। सो ddx of sin x is how much ddx of sin x is how much cos x तो ये हो जाएगा 1 by log of sin x ठीक है ये हो गया into 1 by sin x ठीक है और ddx of sin x ddx sin x xx तो कुछ अज्यूम करने का जरूरत नहीं है इस cos x so what is cos x by sin x it is equal to cot x so answer is cot x by log of sin x all right everyone you copy down this one and try the next sum which I am giving you try the next question that is log of log x try once log of log x try once hurry up so we have y equal to log of log x log of log x so यहां पे आ गया dy by dx ये हो गया ddx of log of log x now सबसे पहला चीज ये log फंक्शन है और यहाँ पे x के जगह पे देखना एक बार यहाँ पे x के जगह पे क्या है देखो तो एक बार अगर हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करें क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो मुझे log के फॉर्मूला से कंपेयर करना पड़ेगा तो बताओ तो log का x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x लेकिन log का x के जगह पे क्या है यहाँ पे इट इज log of log x तो पहले हम लोग इसको आराम से x अज्यूम करके log x का डिफरेंशिएशन करेंगे व्हिच इज 1 by x ठीक है नोट करना ये log फंक्शन है और बाकी जितना चीज है उसको सबको x अज्यूम कर लो। अभी अगर तुम इस पे दिमाग लगाओगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हम लोग आगे सोचेंगे अभी हमारा सिर्फ यही करना है हम लोगों को इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके और log x का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऑलराइट उसके बाद हम लोगों ने जिस पार्ट को x अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है ठीक है हम लोगों ने इस पूरे पार्ट को x अज्यूम किया तो उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट अब देखो वापस से यहाँ पे log फंक्शन है इसका बेस कुछ भी मतलब e है log फंक्शन का बेस e होना चाहिए बट यहाँ पे x के जगह पे x का जो जगह है उस जगह पे क्या है log x है तो पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं और log x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सो इट इज 1 by x it is how much 1 by x 1 by x मतलब log x क्योंकि x के जगह पे log x है तो ddx of log x is 1 by x तो जो है वहां पे हम लिख देंगे देखो log x का डेरिवेटिव 1 by x इसके बाद जिस पार्ट को हमने x अज्यूम किया उसको अब हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे सो व्हाट इज ddx of log x it is again 1 by x we find now यहां पे हमको कुछ अज्यूम करने का जरूरत क्यों नहीं है बिकॉज़ ये भी x है और ये भी x है so 1 by log x into 1 by log x ddx of log x is 1 by x copy down and try the next sum 3 divided by log of sin x 3 divided by log of sin x everyone try this listen देखो सबसे पहला चीज कि यहाँ पे y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय log of sin x है ठीक है 3 डिवाइडेड बाय log of sin x है तो सबसे पहला नंबर पॉइंट सुनना है सपोज मान लो 3 by x स्क्वायर है ठीक है और इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या यहाँ पे हम लोग u by v रूल अप्लाई करेंगे नो नॉट एट ऑल व्हाई नॉट बिकॉज़ न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट डिनोमिनेटर इज अ वेरिएबल so why we will waste our time in applying u by v rule instead of applying u by v rule we can keep 3 outside and differentiate 1 by x square in order to differentiate 1 by x square can I write 1 by x square as x to the power minus 2 everyone is this clear क्या मैं 1 by x square को
x टू द पावर -2 लिख के, और क्या मैं यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ओके, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे log ऑफ sin x का पूरा पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। log ऑफ sin x का पूरा पावर कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। तो क्या मैं इस टर्म को, क्या मैं इस चीज को न्यूमरेटर में अगर लिखूंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। As you all know that 1 by x to the power plus n can be written as x to the power minus n. So if I apply laws of indices here, और अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो इसका पावर क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। So सबसे पहला नंबर पॉइंट, बिफोर डिफरेंशिएशन I will write this as log of sin x whole to the power -1. Okay, अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। So we have ddx of y, which is dy by dx. 3 is a constant, keep it outside. Now in order to differentiate this, what we need to do is, listen here everyone, सबसे पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग को x अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पे पावर में -1 है, तो अगर बेस में x नहीं है, पावर में अगर -1 है और अगर बेस x है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n x टू द पावर n -1। लेकिन x के जगह पे क्या है? लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है? x के जगह पे log ऑफ sin x है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले log ऑफ sin x को x अज्यूम करेंगे और यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is n that is -1 into x to the power n -1। और उसके बाद जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है, that is log of sin x, इसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। log of sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 इंटू 1 इज 3। log of sin x, इसके पूरा पावर पे आ जाएगा -1 which is -2। what is ddx of log sin x? ddx of log sin x is 1 by sin x, ठीक है। उसके बाद फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे ddx of sin x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ddx of sin x क्या हो जाएगा? cos x। Now what is cos x by sin x? It is cot x। ये हो जाएगा dy by dx equals to -3 log of sin x whole to the power -2 into cos x by sin x becomes cot x। This is your answer। I hope it is clear to everyone। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर यूवी रूल यूज करके तो 3 स्टेप में लेकिन आंसर आता है सर, तो उसमें टाइम कैसे ज्यादा लगा? 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा तुम्हारा? हाँ सर, मैंने मतलब एक्चुअली 3 मैंने यहाँ पे स्टेप्स को थोड़ा अननेसेसरी बहुत ज्यादा भी शो कर दिए, अलग बात है। अदरवाइज देखा जाए तो काफी मतलब कम स्टेप्स भी हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर अप्लाइंग माय रूल बट आई एक्चुअली व्हाट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, क्या हम क्यों अप्लाई करेंगे ये भाई रूल? सीधा सा बात है, गलत नहीं है तुम्हारा, अगर हम अप्लाई करें तो गलत नहीं है, लेकिन क्यों अप्लाई करें? ठीक है सर। Copy down। Now let us say, take one example where the base of log is not e, but it is something other than e. Let's say the base is other than e, that is 2। Everyone note down। अगर मान लो log का बेस अगर e नहीं होता है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? प्लीज एवरीवन नोट डाउन। सबसे पहला चीज, log का हम लोग के पास चेंज ऑफ बेस रूल है लोगैरिथम का, और ये चेंज ऑफ बेस रूल काम कैसे करता है ध्यान रखना। We can represent a logarithm as quotient of 2 logarithm। All right, please note down where in the numerator the value of log will be x and in the denominator the value of log will be a। और दोनों का जो बेस दिख रहा है तो लोगों को खाली, दोनों का जो खाली बेस दिख रहा है वो हम लोग जो भी देंगे सेम दे देंगे। जो भी हम बेस देंगे वो क्या करेंगे? हम सेम बेस दे सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे अगर मुझे
5 देना, यहाँ भी 5, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ e तो यहाँ भी e, हम जो भी बेस देंगे वो हम सेम दे सकते हैं। तो एक बार ध्यान से नोट करना है। See, we have here y equal to log of x base 2. Now क्या एक बात बताओ, क्या मैं एक log को डिफरेंशिएट कर सकता हूं अगर उसका बेस e नहीं है? तो we cannot differentiate. बेस e एग्जैक्टली होना जरूरी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो एक बार, बेस को e बनाने के लिए लिसन हियर, मैं ये लॉग चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करूंगा। मतलब मैं न्यूमरेटर में एक लॉग लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी एक लॉग लिख दिया। ये जो x दिख रहा है, मतलब ये जो x दिख रहा है वो न्यूमरेटर वाले लॉग का वैल्यू में बना दूंगा, और ये जो बेस 2 दिख रहा है वो डिनोमिनेटर वाला लॉग का वैल्यू बना दूंगा। और दोनों का भी बेस दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिया हम लोगों ने, राइट? मुझे बेस तो देना पड़ेगा ना। तो एक बात बताओ तुम लोग मुझे, यहाँ पे बेस मुझे क्या देना चाहिए बताओ? चलो ना e क्यों देना चाहिए? बिकॉज तब जाके लॉग का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने सपोज कुछ मेंशन नहीं किया यहाँ पे, सपोज मैं e देना चाहता हूं और मैंने लिखा नहीं, तो उसको क्या माना जाएगा बताओ? तो e ही माना जाएगा। प्लीज मेक श्योर इफ आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग एज द बेस एंड इफ आई वांट टू, आई मीन इफ आई वांट टू गिव, आई मीन इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट बेस एज e, तो हम क्या करेंगे? हम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, और दे देंगे तब तो बहुत बढ़िया है। अगर हम e ना लिखे बेस में तो भी वो कंसीडर क्या किया जाएगा? e ही कंसीडर किया जाएगा ना। अब एक बार ध्यान से नोट करना, e एक इरेशनल नंबर है। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जिसका हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, अलग बात है, बट पाई एक इरेशनल नंबर है। मतलब एक बात बताओ तुम लोग, अगर पाई इरेशनल है तो ddx ऑफ पाई क्या होगा बताओ? तुम कोई बता सकते हैं? ddx ऑफ पाई विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. वेरी सिंपल, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब मुझे बताओ, e एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो एक बात बताओ, टेल मी एवरीवन, व्हाट इज ddx ऑफ e? क्या होगा बताओ? 0. वेरी सिंपल, ddx ऑफ e 0 होगा। लेकिन ddx ऑफ e टू द पावर x 0 नहीं होगा, e टू द पावर x होगा, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ तुम लोग, ddx ऑफ log 2 बेस e क्या होगा? कोई बता सकता है? 0. क्यों होगा 0? सुनना ध्यान से, क्योंकि log का वैल्यू भी कांस्टेंट है और बेस भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा चीज क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कहीं भी वेरिएबल मतलब वैरी नहीं करेगा इसका आंसर, क्योंकि log का वैल्यू भी कांस्टेंट है और बेस भी कांस्टेंट है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर। ओके, अब ध्यान से सुनना यार। अगर मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है log ऑफ x बेस 2 को, तो इस लाइन में तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है, नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएबल बनाने के लिए हम लोग चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई किया हम लोगों ने। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई बता सकता है हाउ टू डिफरेंशिएट दिस? एनीवन? So u by v rule. क्यों करेंगे हम लोग u by v रूल अप्लाई? प्लीज ठीक से देखो। वो सर नीचे तो कांस्टेंट है सर, ऊपर में Constant सर होगा ना। तो तो जैसे कांस्टेंट को मान लो x square मतलब by ले 2 लेंगे बाहर, फिर हो करेंगे। जाएगा। हाँ, जैसे x square by 2 है, यहाँ पे हम अपना u by v रूल अप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करने वाले करेंगे? आप बाहर रख करके और ddx ऑफ x स्क्वायर कर देंगे। व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर? 2x है कि नहीं? तो ठीक वैसे ही यहाँ पे 1 by log 2 को बाहर रख करके हम लोग log x को डिफरेंशिएट करने वाले, ठीक है? यहाँ पे log x है, यहाँ पे एक बात बताओ, log का बेस e है और x की जगह पे x ही है, तो कुछ अज्यूम भी नहीं करना है, तो ddx ऑफ log x क्या होगा? 1 by x। सो आंसर इज 1 by log 2 into 1 by x। दिस इज dy by dx। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हियर। समझ में आई ये वाला सम सबको? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y equal to log of sin x base 3. The next question is y equal to log of 3 base tan x. The next question is y equal to log of sin x base cos x. Everyone try all these three questions. ये पहला क्वेश्चन है log sin x base 3, दूसरा क्वेश्चन है log 3 base tan x, और थर्ड क्वेश्चन है log of sin x base cos x. Try once. So the first question is y equal to log of sin x and the base is 3. As you cannot differentiate,
log sin x with base 3. Let us apply change of base rule. Okay everyone, so it is log of sin x by log of 3 और दोनों का बेस हम जो भी देंगे हम इक्वल बेस देंगे, तो यहाँ पे e है यहाँ पे भी e हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये cot x divided by log 3. Please check once your answer everyone. Okay, second number, because ये सिंपल है, 1 by log 3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 1 by log 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और फिर log sin x का डिफरेंशिएशन तो पता ही है सबको. Alright, now the second number. Can anyone tell me what is the answer of second number, sir? सर नीचे वाला का है साइड वाला? ये सेकंड सेकंड सर माइनस log 3 log tan x into sec square x minus sec square x by tan x. log of tan x का होल स्क्वायर मतलब log of tan x होल टू द पावर -2 नहीं होगा? Yes, sir, -2. नहीं सर, माइनस log ये log of 3 base tan x है, तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करेंगे, इसके हिसाब से ये हो जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय log of tan x, पहला पॉइंट, और दोनों का जो बेस है वो क्या है, e है. इसको डिफरेंशिएट करने के लिए log 3 कांस्टेंट है और 1 by log tan x को log tan x whole to the power -1 लिखेंगे. ddx of y becomes dy by dx, ये log 3 को बाहर रख देना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करने वाले हैं, ठीक है. I will assume this whole thing as x first and I will apply the formula of x to the power n, which is n into x to the power n minus 1. उसके बाद हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम किया हम लोगों ने, that is log tan x, उसको डिफरेंशिएट. Plus into minus becomes minus, so we have minus log 3 log tan x whole to the power -2. तो यहाँ पे ddx of log फंक्शन है जिसका बेस कुछ नहीं मतलब e और x के जगह पे tan x है, so ddx of log x is 1 by x, that is 1 by tan x, और फिर tan x का फर्दर डिफरेंशिएशन, तो ddx of tan x is equal to how much, sec square x, तो ये हो गया minus log 3, इसके पावर में नेगेटिव है, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा पावर, and ddx of tan x is sec square x, so this is dy by dx. Now the last sum was y equal to log of sin x base cos x. Everyone try this one. So the sum. We have log of sin x base cos x. So in order to differentiate this, we have to make the base of logarithm equal to what? E. तो e बनाने के लिए देखो ध्यान से क्या करेंगे. Log sin x divided by log cos x, और दोनों जो log है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस क्या देंगे हम लोग, e देंगे. ओके, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है यहाँ पे e. Now let me ask you what is ddx of log sin x. ddx of log sin x is how much? It is 1 by cos x sin x into ddx of sin x. So we have 1 by sin x and ddx of sin x is how much, cos x. ये हो जाएगा cot x.
And if I ask you what is ddx of cos x, log cos x only, so your answer is 1 by cos x. के बाद फिर cos x का further differentiation. So what is ddx of cos x? It is minus sin x. तो ये हो गया minus tan x. Alright. So ddx of log sin x is cot x and ddx of log cos x is minus tan x. अब ध्यान देना ये वाला सब. So if we differentiate y with respect to x, we have ddx of y, which is dy by dx. Let us apply u by v, and the formula is v into ddx of u. Just a minute, यहाँ space नहीं है line. तो ये हो जाएगा u by v equals to v into ddx of u, that is log sin x minus log sin x into ddx of log cos x divided by log cos x. Now what is ddx of log sin x? ddx of log sin x is cot x. ddx of log cos x is minus tan x. So what is the answer? It is cot x into log of cos x minus minus plus tan x into log of sin x divided by log cos x का होल स्क्वायर. तो ये था लॉग टाइप का सब. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे. देखना एक बार, एक्सपोनेंशियल टाइप. Now everyone note down. See, you all know that ddx of e to the power x is e to the power x. So let us say a few. Let us take few examples. Suppose we have ddx of. Suppose we have y equal to e to the power x cube. Let's say e to the power x. Okay, एकदम simple सा हम लोग. So ध्यान देना एक बार. ddx of y becomes dy by dx. Here we have ddx of e to the power x. अब नोट करना है ddx of e to the power x is equal to what? E to the power x. बट एक बात बताना, यहाँ पे e to the power, देखो e to the power x मतलब ये भी x होना चाहिए और ये भी x, तो आंसर क्या हो जाएगा? e to the power x. बट एक बात बताओ, यहाँ पे x के जगह पे क्या है? What is there at the place of x? Yes, x cube. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले x cube को x assume करेंगे. Now what is ddx of e to the power x? e to the power e to the x. power x. And then हम लोग x cube को further differentiate करेंगे. ddx of x cube is how much? 3x square. So this is your dy by dx. Now everyone try these questions which I am giving, which is y equal to e to the power x square sin x, then y equal to e to the power root tan x. एक बार ये दो सब ट्राई करो. So I'm directly writing the answer of first question. Okay, I think सबका आ ही गया होगा, मुझे लगता है ऐसा. इसका आंसर है e to the power x square sin x, and then in the bracket is x square cos x plus 2x into sin x. Check. अगर नहीं आया, देखो अगर नहीं आया तो तुम मुझे बोलो, मैं एक बार पूरा स्टेप्स बताता हूं. एनीवन? सिंपल है, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x और फिर x square sin x में हम लोग u भी रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है,
x square into sin x में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? u into v rule. Okay everyone, shall I mean do it for you, or is this okay if I have written the answer, if you corrected your answer? एक बार कर दीजिए। अच्छा ये वाला पार्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा dy by dx, ये हो गया dx of e to the power x square sin x. Now see what is ddx of e to the power x? देखो x के जगह पे x square sin x है, e to the power x का डिफरेंशिएशन होता है e to the power x, ठीक है। उसके बाद फिर जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उसका फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर ये जब जिस पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिस पार्ट का ये कैसा फॉर्म है बताओ, तो प्रोडक्ट फॉर्म है। तो पहला वाला को u ले लेना और दूसरा वाला फंक्शन को v ले लेना एंड अप्लाई uv रूल, बट द फार्मूला इज u into ddx of v, that is sin x plus sin x into ddx of u, that is x square. Now what is ddx of sin x? Is equal to cos x. The sin x बाहर है, ddx of x square is how much? 2x. अब ये दोनों में कॉमन क्या है बताना एक बार, x कॉमन, बच जाएगा x cos x plus 2 sin x. This is the answer. Alright. Now मैं इसका भी आंसर एक बार लिख देता हूँ, जिन लोगों ने कर लिया एक बार वो चेक कर लो अपना आंसर। एवरीवन चेक योर आंसर। अगर मान लो आंसर अगर तुमने नहीं किया है तो पहले सॉल्व करो और देखो याद है, और अगर कर लिया तो यू वेरीफाई योर आंसर। इफ देयर इज एनी मिस्टेक आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व। ओके, अगर नहीं हुआ या किसी का आंसर अभी जो कर लिया नहीं है रॉन्ग है, आई जस्ट सॉल्व फॉर यू। जस्ट वेट फॉर 2 minutes, let everyone try first. See, there is a law in logarithm. Now ये वाला law मैंने दिया नहीं, देखना एक बार, you just write down this law, and it is a to the power log of x base a. See everyone, a to the power log x base a is equal to x. Please everyone note down this law. जब मैं log का फॉर्मूला दिया था ना, शायद तब मैं ये भूल गया था, हो सकता है। ओके, तो इसीलिए मैं ये चीज मेंशन कर दिया अभी कि जब भी ध्यान रखेगा, सपोज यू हैव 2, ओके, 2 के पावर पे अगर मान लो log ऑफ, अगर मान लो x बेस 2 होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब तुम ध्यान से नोट करना, जैसे log का बेस है, देखो log का बेस क्या बताओ तो एक बार 2, और ये पूरा का बेस क्या बताओ तो पूरा का, अगर हम पूरा का बेस देखें तो क्या है, वो भी 2 है। तो देखो ये सेम है कि नहीं, तो log का जो वैल्यू होगा वो आंसर होगा। सो एवरीवन टेल मी व्हाट इज 3 टू द पावर log of x base 3? एनीवन? x तो एक बात बताओ, फिर फाइनली एक बात बताओ, तो e to the power log of x क्या होगा, बता सकते हैं? x क्यों होगा x? यहाँ तो बेस log का क्या है, बट ई कंसीडर करेंगे, कुछ दिया अगर हुआ कुछ नहीं है तो e है, मतलब कुछ मेंशन नहीं है मतलब e है, तो आंसर क्या होगा, x। अब बताओ तुम मुझे, सपोज यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 8 होता, तो आंसर क्या आता बताओ। अब बताओ। यस 7x नहीं, 7x x by 7. नहीं, now listen. Shreya. Yeah, understood. X to the power, तो ध्यान देना एक बार, listen everyone, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चीज मुझे एक बात बताओ, log of x to the power n with any base is equal to n into log x base n. Check once everyone. Log x to the power n with any base, log का मैं बात कर रहा हूँ, is n into log x base n। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि log के अगर आगे कोई भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वो चीज log के वैल्यू के पावर पे रेज हो जाता है।
लॉग के वैल्यू के पावर पे रेज हम कर सकते हैं डेफिनेटली। देखो आगे n है, x के पावर पे n लिखो। तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8 को लॉग के वैल्यू के पावर पे रेज कर सकता हूं मैं? चेक करेंगे। समझ में मैंने क्या बोला? ये जो लॉग के आगे जो 8 प्रोडक्ट फॉर्म है वो मैंने x के पावर पे लिख दिया। अब बताओ तुम लोग इसका आंसर क्या होगा? x to the power 8 x to the power। तो एक बात बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा? x to the power 5 क्यों होगा x to the power 5? बिकॉज 5 into log x, 5 into log x को हम 5 को x के पावर पे रेज कर सकते हैं। And the answer is x to the power 5. What about this? to the power 7 X to the power 7. The answer is x to the power 7. I hope it is clear everyone. तो ये सब आता कैसे है देखना एक बार। जैसे सपोज तुम लोग को दिया जाएगा y equal to e to the power 7 log x, ऐसे सपोज दिया जाए और बोला जाएगा डिफरेंशिएट। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? सब एक एक मार्क्स का सम है, याद रखना। सीबीएसई में या आईएससी में जो भी जिस वो भी बोर्ड का भी बात करेगा हम लोग, तो देयर आर 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच। तो ये सारे क्वेश्चंस में अगर बेसिक कांसेप्ट्स किसी का क्लियर नहीं है तो होगा ही नहीं सर। इसका हम क्या करेंगे? पहले e to the power log of x to the power 7 बेसिक, x to the power 7 लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 7x to the power 6। तो देखो जिसको ये प्रॉपर्टी, ये लॉ जिसको बढ़िया से पता नहीं होगा, तो देयर विल बी 4 ऑप्शंस गिवन टू यू। सब लोग इसको डिफरेंशिएट करके आंसर मैच कराने के चक्कर में लगे। बट जिसको आता है एक लाइन में उसको दिख रहा है कि x to the power 7 आ रहा है और इसका डिफरेंशिएशन ही, वो फट से आंसर बता पाए। Is this clear to everyone? So this is the end of our last topic, okay, of today's class. And here I want to tell you that with this you can complete all the questions of number 2. Along with this 2, I'll give you one more video using which you can complete number 3 as well. तो मैं चाहता हूं 2 और 3 जो क्वेश्चंस है ये पूरा करके, मैं थोड़ा टाइम लगेगा भेजने में, 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है 12 बजे तक। So I'll send you all your work along with the videos. So please make sure that you complete all your work and get ready for your class that is tomorrow at the same time.